So we are going to discuss about the medical termination of pregnancy. Fine. So what we are going to discuss in this introduction, short title, extent, definition, specification, MTP का बिल जो 2020 में आया था, offenses and penalties. Okay. That was in 1970, right? 71. Yes, yes, yes. अब उसमें थोड़े changes हो गए 1921 में. Oh, sorry. 1920? Sorry, 2021 में कुछ changes हुए हैं उसमें. ठीक है. Okay. So, can you please start reading this? Yes, sir. Medical termination of pregnancy MPP Act. इधर से सीधा. Medical termination pregnancy MPP is an act to provide for the termination of certain pregnancies, the registered medical practitioner and the matter connected therewith or incidental thereto. So basically, termination of pregnancy is one of the important things that we have to our practitioner has to go through क्योंकि उसको कई सारे dilemma situation को face करना पड़ता है. There are two thought processes in the world. One is pro-abortion, one is anti-abortion. Pro-abortion means that it is the right of human beings or women reproductive right to decide कि कब बच्चे को जन्म देना है कब नहीं देना है. The anti-abortion side says that it is something which is decided by the God and humans should not intervene in this. तो ये एक प्रो अबॉर्शन और एंटी अबॉर्शन का एक बहुत बड़ा टसल जो है पूरी दुनिया में चलता रहता है. इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. Yes, please. This act may be called for the Medical Termination of Pregnancy Act 1971. It extends to the whole of India except the state of Jammu Kashmir. It's a date of the central government may be the notification of the official gazette upon. So I think it extends to the all of the India Act. Fine. Just a second, please.
Yes, please go ahead. Definition is Abhishek. guardian means a person having the care of the person of the minor or a lunatic. A Hmm. lunatic has the meaning assigned to the Section 3 of Indian Lunacy Act 1912. Lunatic synonym is a mentally ill person, means a person who is in need of the treatment for by any reason or any mental Hmm. disorder or the mental retardation. Minor means a person who, under the provision of the Indian Majority Act 1875, is to be deemed not to have the attain his majority. Hmm. Registered medical practitioner means a medical practitioner who possesses an recognized medical qualification as defined as a in class H of section 2 of the Medical Council of India 1956-102, Hmm. whose name has been entered in the state medical register and who has been experienced of training in gynecology obstetrics and may have prescribed the rules or made under this act. तो बेसिकली गार्जियन कौन है? वो वो आदमी जो किसी माइनर और लुनैटिक को टेक केयर करता है या उसके लिए उसके बिहाफ पे डिसीजंस लेता है. लुनैटिक Mhm, कौन है? लुनैटिक मतलब पागल. कोई पागल हो जाए या मेंटली इल पर्सन है हु इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन डिसीजन. माइनर mhm, माइनर का अगर मैं सही से बताऊं आपको तो 18 साल से नीचे की एज वाला जो है माइनर है. mhm, mhm, और रजिस्टर रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है? जो कि इंडियन मेडिकल mhm, काउंसिल एक्ट के तहत किसी भी स्टेट मेडिकल रजिस्टर के अंदर रजिस्टर्ड है. ठीक है. और उसके पास एक्सपीरियंस है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स का. ठीक है, उसको हम आरएमपी बोलेंगे. ठीक है, प्लीज गो अहेड. when pregnancy can be terminated, who can terminate, the place where it can be terminated, and consent requirement. सो हम इनको डिटेल में जानते हैं अभी. Mhm. When pregnancy can be terminated, is indicate the legal termination of the termination. Continuation of pregnancy is to risk of the life of a pregnant woman, or it can be caused grave injury to her physical or mental retardation. Substantial risk that a child is would be seriously mm, born would be seriously हैंडीकैप्ड. handicapped due to physical or mental abnormality. Pregnancy caused by rape, failure to contracept in married women. ठीक है, कब कब करनी है भाई? अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को थ्रेट हो Mhm, सकता है या उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को थ्रेट हो सकता है तो हमें कर देनी चाहिए. ठीक mhm, है. या फिर अगर जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो mhm, उसकी लाइफ को कुछ खतरा हो सकता है, मेंटल उसकी एबनॉर्मलिटी हो सकती है, फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो उस केस में mhm, कर देना चाहिए. अगर mhm, pregnancy is caused by rape, so then can be mhm, done failure of mhm, contraceptive in married women. कि भाई मैरिड वुमेन है, उसका उन्होंने कॉपर्टी इंसर्ट कराया था या कुछ भी कराया था, कोई परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर लिया हुआ था, तो इन दैट mhm, केस फेलियर इज कॉल्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. mhm, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. ओके. mhm. The registered medical practitioner who has a recognized medical qualification defined as a Section 2 Indian Medical Act 1950, whose name is registered in State Medical Register and who have training experience of as per MTP rules. Who can ठीक है. terminate? हाँ. आरएमपी कैन डू दैट, जो कि क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2 इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में लिखा हुआ है. The place where it can be terminated, no termination of pregnancy shall be made in accordance in the Act. At any place other than an hospital established in the maintained by the government or place in the time been approved by the purpose of the act of the government or a district level committee consulted by the government or other chief medical officer or district health officer as the chairperson of the state committee, provided that the district level committee will be considered the not less than not more than the five members, including the chairperson, as the government may specify the time to time. अच्छा, तो बेसिकली क्या है, कहाँ पे की जा सकती है? जहां पे यहाँ लिखा हुआ है एक दो, ये जो लिखे हुई हैं, इनके अलावा कहीं और नहीं की जा सकती है. पहली बात, या तो हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने बनाया हो या उनके द्वारा एस्टेब्लिश्ड हो, या फिर अ प्लेस फ्रॉम द फॉर द टाइम बीइंग अप्रूव्ड, मतलब किसी किसी भी गवर्नमेंट ने
ये अप्रूव किया होगा कि यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है। A DLC, district level committee constituted by that government with the CMO or district health officer as the chairperson of the said committee, provided that DLC district level committee shall consist of not more than 5 members, including the chairperson, as the government may specify from time to time. तो एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकती है, और दूसरा ऐसे किसी भी प्लेस पे हो सकती है जहां पे कि गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ हो सकती है। अब गवर्नमेंट कैसे कहेगी? गवर्नमेंट एक डीएलसी बनाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाएगी। उस कमेटी में जो चेयरपर्सन होगा वो चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा उस एरिया का। वो बताएगा कि इधर हो सकता है या इधर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर उस प्राइवेट हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी चीफ मेडिकल ऑफिसर के साथ मिल करके, मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर उसका जो चेयरपर्सन है वो ये कह देता है कि यहाँ पर आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये चीज आसानी से हो जाएगी। यस, प्लीज गो अहेड। Last but most important, consent requirement. Form C from the consent of the woman is required. If age is less than 18 years of mental ill patient, the consent of guardian is required. Clear है ओके, क्या? ठीक है। हम्म कंसेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि भाई कौन हम्म कंसेंट दे सकता है। ठीक है, हम्म पहली बात तो वो हम्म वुमेन खुद से ही दे सकती है कंसेंट। हम्म अगर वो हम्म वुमेन ल्यूनाटिक है या हम्म मेंटली इल है या हम्म फिर माइनर है, तो उसके लिए गार्जियन हम्म दे सकता है उसका कंसेंट। हम्म अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं। हम्म अगर बच्चे की अगर जो माइनर है उसकी एज लेस देन 12 ईयर्स है, ठीक है। वैसे यूजुअली ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि भाई लेस देन 12 ईयर्स, क्योंकि उसने बच्चे ने प्यूबर्टी हिट नहीं करी होती है। ठीक है, बट फिर भी मैं बताने को बता रहा हूँ आपको, अगर 12 साल से कम है तो कंप्लीटली गार्जियन देता है, उसमें पेरेंट्स देते हैं। ठीक है, और अगर अगर 12 साल से ज्यादा है तो इन दैट केस बच्चा भी देता है और गार्जियन भी देता है। ठीक है, यस। The medical termination pregnancy amendment is the medical termination pregnancy amendment bill is 2020 is introduced with Lok Sabha Minister of Health Family Welfare March in 2020 and passed by March 17, 2020 in Lok Sabha. The bill amendment of the medical termination pregnancy act 1971 which provides for the termination of certain pregnancies by RMP. The bill adds the definition of termination of pregnancy to mean the procedure undertaken to terminate the pregnancy by using the medical or surgical methods. The ठीक medical है, आई थिंक termination दिस of इज pregnancy. सेल्फ The एक्सप्लेनेटरी। medical The medical termination pregnancy amendment bill termination of pregnancy under the Act of Pregnancy can be terminated with 12 weeks and if registered medical termination of the opinion that the constitution of the pregnancy may risk the life of the mother and cause grievous injuries to her health, or if there is a substantial risk that the child, if the born with, would suffer physical or mental deformities, or termination of pregnancy between 12 and 20 weeks, two medical practitioners are required to give their opinion. Sir, एक जो ठीक है, क्वेश्चन था, हाँ जी, जैसे हाँ जी, हम लोग बताइए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर, दिस इज एब्सोल्युटली टोटली द लॉ एंड एक्ट ऑन एवरीथिंग व्हिच इज कम हम्म टू द पार्ट ऑफ मेडिसिन, राइट? जो हम्म गायनेकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, फॉरेंसिक में पढ़ते हैं, वो ये हम्म हर चीज में हम्म, पढ़ते हम्म। हैं। बट बेसिकली मैं ये बोलो कि सर ये क्वालिटी के अंदर भी आ सकता है क्या, कि जैसे हमें हर चीज चेकिंग करना बिल्कुल होता है कि बिल्कुल, क्वालिटी के अंदर क्या हम्म होता है, देखो सुनो। क्वालिटी के हम्म अंदर कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि गायनेकोलॉजी से, ऑप्शन गायनी से रिलेटेड है। उसमें एक एग्जैक्टली जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि हॉस्पिटल के पास में रेक्विजिट लाइसेंसेस होने चाहिए। एनएबीएच का स्टैंडर्ड है ये। रेक्विजिट हम्म लाइसेंसेस होने चाहिए, हम्म रिक्वायर्ड लाइसेंसेस होने चाहिए फॉर टू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ, क्या बोला, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर कुछ एग्जैक्टली भी ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए चाहिए होता है। तो ये क्वालिटी के अंदर आता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बात ही नहीं है सर। हम्म, सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को आउट ऑफ द हम्म, कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहता हूँ सर, ये प्लीज प्लीज। ऑपरेशन और क्वालिटी में डिफरेंसेस भी कैसे होते हैं? ऑपरेशन मतलब इज लाइक टू वर्किंग स्मूथली फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल, राइट? बेसिकली हम्म हम्म ये हम्म ये लोग क्या रिक्रूटमेंट में, मतलब ये मैन पावर का कहाँ पे इंक्रीज होना है? क्योंकि सर मैं अभी हम्म। थोड़ा एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ आईबीएस में, जैसे यहाँ पे ज्वाइन किया है। आईबीएस यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन, ब्रेन एंड स्पाइन, हाँ, लाजपत लाजपत नगर। नगर में। जी जी जी। अच्छा, ठीक। तो ये छोटा सा अभी सेटअप है, अभी वो लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, मतलब अभी तो 50 बेडेड का है। डॉक्टर तो सचिन दिवाकर ना?
डॉक्टर डॉक्टर सचिन कांदरवाला और दिवाकर दिवाकर शर्मा जो हाँ है। तो वही मैं कह रहा हूँ, सचिन एंड दिवाकर है, डॉक्टर सचिन एंड डॉक्टर दिवाकर। यस 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 यस, आप जानते हो सर हाँ इधर का हाँ सर, हॉस्पिटल को? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। तो यहाँ पे ऑपरेशंस में मैं अभी मतलब हूँ मतलब कॉलेज तो, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि मैं ना मतलब सीखने का कुछ वो नहीं हो मतलब क्वालिटी में कैसे कैसे पैरामीटर्स देखना है, मतलब कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं नहीं नहीं, नहीं जा आप रहा एक हूँ बात मतलब। बताइए, मुझे एक बात हम्म बताइए, हम्म आप जो क्वालिटी पढ़ रहे हैं, क्वालिटी में यहाँ हम्म। इंटर्नशिप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? नहीं सर, मैं तो अभी इंटर्नशिप करूँ, हॉस्पिटल पोस्टिंग जो हमारा साई वाले देते हैं ना, जो 2-3 महीने के लिए करना पड़ता है ना हमें हॉस्पिटल अच्छा अच्छा पोस्टिंग अच्छा एग्जाम, अच्छा अच्छा। तो समर वहां इंटर्नशिप पे जिसको क्या बोलते हैं। कर रहे हो आप अभी? ऑपरेशंस में काम कर रहे हो, क्वालिटी में काम कर रहे हो? बेसिकली मैं एचआर के पास गया था, मतलब एआईएमएस वालों ने भेजा था, मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद उन हम्म लोगों ने असिस्टेंट मैनेजर जो है ज्वाइन किया है, वो ऑपरेशंस में बैठती है। हम्म और मोस्ट ऑफ क्योंकि बड़ा सेटअप है नहीं तो क्वालिटी का मेरे ख्याल से मतलब ऑपरेशन क्वालिटी दोनों ही देखते हैं, तो मैंने आईपीएस के ऊपर डिसाइड क्या करने के लिए तो मैंने एक एक गोल्स पढ़ने लगा और मैं राउंड पे जाता हूँ। राउंड पे फर्स्ट फ्लोर में जो होता है बेसिकली वहाँ पे 12 या 15 पेशेंट्स कभी कभी रहते हैं, हम्म मोस्टली न्यूरो और ऑर्थो का ही रहता है। वैसे और कभी कभी कोई मेडिसिन का पेशेंट आ गया जैसे डायबिटिक हम्म किटोएसिडोसिस का हो गया या लोअर बैक पेन का हम्म ऐसे छोटे मोटे पेशेंट आ गए, वो उन लोग को आईसीयू अगर कोई एडमिट हुआ तो उसके बाद वो होगा। हम्म। तो ऑपरेशन का काम मेरे को मतलब मुझे मतलब समझ नहीं थोड़ा आता सा आपको? नहीं, मैंने मतलब जब जैसे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है ना, मेरे को थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है उसके बारे में क्योंकि मैं अभी दिस इज राइट टाइम टू लर्न। इसके बाद फिर एक बार ये लाइफ खत्म हो गया उसके बाद कोई पैसा देके सिखाएगा नहीं। तो वो मैं हम्म। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ सर कि मतलब कैसे मतलब ऑपरेशन को बेसिकली वो मतलब उसका जो मैं काम देखता हूँ बेसिकली मैं देखता हूँ कि वो कॉल करके टीवी का अरेंजमेंट हो, मतलब कि जो हॉस्पिटल में फैसिलिटी जो करना है, छूट बुट कम हो गया, वो बंद हो गया, ये प्रॉब्लम्स हो गए। दिस इज व्हाट ऑपरेशन इज अबाउट, और ऑपरेशन इज Yes, क्वालिटी का तो yes, yes, yes. Operations is about getting the work done so that the services are running smoothly. कि डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट सिस्टम सही चल रहा है। ठीक है, आपने उसके लिए आपको जाके नहीं करना है अपॉइंटमेंट कि भाई आप बैठे हो फोन पर बैठ के अपॉइंटमेंट ले रहे हो, नहीं, आपको नहीं लेना है। आपको ये इंश्योर करना है कि वहां पे कोई आदमी हो और जो डॉक्टर्स को प्रॉपरली अपॉइंटमेंट दे रहा हो, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पे कोई आदमी हो जो डॉक्टर का ओपीडी कार्ड बना के दे रहा हो। तीसरी जी चीज, जी जी। ये जो ओपीडी कार्ड ठीक बना है। के देगा इसके लिए प्रिंटर चाहिए होगा, तो ये आपको अरेंज करना है कि वहां पे प्रिंटर लगे। ठीक है, ओके, मतलब ये वहां पर। फैसिलिटी भी हाँ हमें देखना पड़ेगा, हाँ फैसिलिटी हाँ, सब मैनेजमेंट कुछ में। सब कुछ। मैनेजमेंट का ओके। मतलब यह है कि डॉक्टर को क्या चाहिए, डॉक्टर कमरे में बैठा है और उसके पास में जब भी पेशेंट पहुंचे तो उसके हाथ उसकी पेमेंट हो जाए, उसका उसका ओपीडी कार्ड जो है अंदर लेके जाए वो, ठीक है। फिर डॉक्टर वहां पे देगा। तो अब कार्ड बनने के लिए आपको प्रिंटर चाहिए, पेज चाहिए, ठीक है, कार्ड चाहिए। तो वो प्रिंट हो जाए, प्रिंट करने के लिए कौन होगा, एक आदमी लगेगा। वो आदमी आपके अंडर काम कर रहा होगा और आपको मेक श्योर करना है कि वो आए, वो रोज रोज आए वहां पे और ये काम करे। आपका अच्छा, काम चलता रहना चाहिए। ये ठीक कॉम्प्रिहेंसिव है, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव जो। कॉम्प्रिहेंसिव। अगर वहां पे अब वहां पे अ, उसी एरिया में जब पेशेंट वेट करेगा तो कहाँ वेट करेगा, उसके लिए बेंचेस चाहिए, चेयर्स चाहिए। तो ये आपको डिसाइड करना है कौन से तरह की चेयर्स चाहिए और कितनी चेयर्स चाहिए। ठीक है, ओके, मतलब सीएमसी एमसी भी हम कैसे उन देखेंगे। चेयर्स का अरेंजमेंट, हाँ हाँ, कैसे उनका चेयर्स का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो अब आपको नहीं देखना है, आपको जाके हिला के ठीक नहीं करना है। आपके नीचे एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर होगा। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को बोल के आपको उसको ठीक कराना है और उसको कराना है, ठीक है। अब क्या है, अब कैफेटेरिया होगा, कैफेटेरिया में खाना भी तो बनेगा ही। तो आपको खाना हाँ नहीं जी हाँ जी। बनाना है, ठीक है। आपको ये इंश्योर करना है कि रेगुलरली और टाइमली खाना बन रहा है और पेशेंट्स को जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मतलब एनीथिंग और एवरीथिंग व्हाट यू कैन थिंक ऑफ इज मैनेजमेंट। डॉक्टर क्या कर ओके। सकता है, सर्जरी कर सकता है। डॉक्टर के हाथ में स्केलेपल हाथ में आ गया उसके, और वो सर्जरी कर सकता है स्केलेपल। अब लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि ऐसे प्रोसेसेस बनाने हैं कि जो पेशेंट है एडमिट होने के बाद में प्रोसेसेस बना के ऑटोमेटिकली वो कहाँ पहुंच जाए, ओटी के अंदर पहुंच जाए। और जैसे ही डॉक्टर ओटी में जाए तो उसके हाथ में उसको स्केलेपल मिल जाए, ठीक है। अब ओके। स्केलेपल मिलने के बाद में जब वो इंसिजन लगाएगा तो उसके पास में कोई स्टाफ चाहिए, तो वो स्टाफ अवेलेबल हो।
ये सारा मैनेजमेंट का काम है ये इंश्योर करना। अब उसी ओके। वहीं पर उसको चाहिए कॉटन होनी चाहिए, तो ये मैनेजमेंट का हम्म काम है कि वहां पे कॉटन अवेलेबल हो। अब ऐसा प्रोसेस बनाया जाए कि वो वहां हम्म पे कॉटन अवेलेबल हो। ठीक है, हम्म हम्म मैनेजमेंट का काम है प्रोसेसेस को एस्टैब्लिश करना, ताकि क्या है हम्म कोई चीज स्मूथली हो सके। अब एक बात सोचो कि पेशेंट, डॉक्टर पहुंच गया, हम्म कॉटन पहुंच गई, नर्सेस पहुंच गई, ग्रीन क्लोथ पहुंच गया, सब कुछ पहुंच गया, ओटी में पहुंच गया, लेकिन पेशेंट ही नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा पेशेंट? क्योंकि भाई हम्म वहां पर एक व्हील चेयर थी, और व्हील चेयर कह रहा हम्म हूँ, स्ट्रेचर था, हम्म स्ट्रेचर खराब पड़ा था, तो इसलिए पेशेंट को हम्म कैसे लेके आते? एक दो स्ट्रेचर थे, एक दूसरे पेशेंट को ओटी में छोड़ने गया हुआ था, तो अब हम्म स्ट्रेचर ना होने की वजह से क्या हो गया, मतलब पेशेंट ओटी हम्म ही नहीं पहुंच पाया। अब इससे हम्म प्रॉब्लम क्या हुआ? इससे ओवरऑल हम्म प्रॉब्लम ये हुआ कि पेशेंट का हम्म ट्रीटमेंट डिले हुआ, डॉक्टर का टाइम वेस्ट हुआ, है ना? तो हम्म आपको ये इंश्योर करना है कि वहां पे स्ट्रेचर हो। आपको ये हम्म इंश्योर करने की सारी चीजें होती हैं, मतलब एनीथिंग और एवरीथिंग व्हाट यू कैन थिंक ऑफ इज इन द, रनिंग द हॉस्पिटल, मतलब जो रन यस, इन करने के लिए रनिंग द जो जो हॉस्पिटल। चाहिए। ओके। कुछ भी चाहिए, ओके। वहां पानी चाहिए, हम्म बैठने के लिए फैसिलिटीज चाहिए। अब क्या है हम्म कि ये आपको इंश्योर करना है कि दिन में 2 बार एडमिटेड पेशेंट को देखा जाए। ठीक है, तो वो ओके। कैसे देखेंगे? मतलब ये देखा कैसे जाएगा कि भाई मतलब पेशेंट है कि नहीं है, ये देखा कैसे जाए? डॉक्टर हम्म कैसे इंश्योर करेगा कि भाई पेशेंट को देख लिया है नहीं देखा है? तो आपको ये प्रोसेसेस करने हैं कि भाई किसका सुबह किसका राउंड होगा, शाम को किसका राउंड होगा। ठीक है, बिलिंग ओके। कैसे होनी है? ठीक है, बिलिंग कैसे हम्म होनी है? अब जो पेशेंट्स हैं उनको एस्टिमेट दिया होगा, तो उनसे हम्म पैसे पैसे कैसे लेने हैं? ठीक है, पैसे के हम्म लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भाई 2 लाख से ज्यादा कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट हम्म ऑफ इंडिया का रूल है। अब गवर्नमेंट ऑफ हम्म इंडिया का रूल है, तो आपको अपने हॉस्पिटल में भी एस्टैब्लिश करना है। अपने हॉस्पिटल में आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे ये चीज? आप समझे आधार मेरी कार्ड बात? को भी, मैं समझ गया, हाँ आधार कार्ड को हाँ, भी तो मैंडेटरी आधार करना कार्ड है। चाहिए, ये सब चाहिए, ये सब हाँ। क्या है? ये गवर्नमेंट के पैन रूल्स एंड कार्ड। रेगुलेशंस आपको वो भी फॉलो करने हैं, ठीक हॉस्पिटल है। के रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने हैं, हॉस्पिटल का हम्म फायदा भी कराना है। ये हम्म सारी चीजें मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट इज फार मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन अ डॉक्टर्स वर्क। दैट इज वेरी वेरी, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब बट आई वाज स्केयर्ड, लाइक मेरे को क्वालिटी का काम सीखने को, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा, मतलब आई नीड टू लर्न ठीक है, मोर अबाउट क्वालिटी क्वालिटी, पर्टिकुलर सुनो सुनो, क्वालिटी का क्या थिंग। है, क्वालिटी में क्या है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ क्वालिटी का क्या है। आप सपोज किसी हॉस्पिटल गए, ठीक है, और मतलब कोई आदमी गया, उसकी टांग टूट गई, मतलब बेसिकली उसको फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर ठीक है। होने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कॉमन सेंस की बात है, ठीक हॉस्पिटल है। में एडमिट हो गया वो। चलो, ठीक है। अब 5 दिन वो एडमिटेड रहा, ठीक है, हम्म लेकिन हम्म हॉस्पिटल का गंदा पानी पीने से उसको क्या हो गया? स्टमक उसको इन्फेक्शन हो गया। स्टमक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अब अब एक बात बताओ, वो एडमिट किस लिए हुआ था? ट्रीटमेंट के लिए, हील के लिए, कौन से हीलिंग के लिए। ट्रीटमेंट के लिए? फ्रैक्चर हुआ था उसका पैर का, तो वो फ्रैक्चर उसके के लिए लिए। वो और अब वहां पे जाके उसको और क्या प्रॉब्लम हो गई? स्टमक अपसेट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, स्टमक तो अपसेट ये हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द बैड क्वालिटी ऑफ द वाटर। बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। तो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर मतलब आया किसी प्रॉब्लम से था, और उसके अंदर और कुछ। प्रॉब्लम कम होने की बजाय और बढ़ और गई। तो क्या ये ओके। क्वालिटी ऑफ सर्विस है? ऑफ कोर्स क्वालिटी नहीं ऑफ है। सर्विस है। नहीं, मतलब क्वालिटी नहीं। ऑफ सर्विस में आता है, मतलब इट इज नॉट क्वालिटी ऑफ सर्विस, बट इट कम हाँ फॉल्स हाँ ऑफ द हाँ, क्वालिटी तो इंस्पेक्शन अभी अभी में, रुक वो बोल। रुक जाओ रुक जाओ, हम्म, तो हम्म, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं है। ठीक है, नहीं तो है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? क्या है हम्म, कि अगर पानी साफ होता, अच्छा हम्म, होता, तो उसको हम्म, स्टमक हम्म, इन्फेक्शन नहीं होता। अब हम्म, पानी साफ रहे या अच्छा रहे, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? या तो मुझको एक हम्म, आरओ का, अच्छा आरओ की सप्लाई चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या ठीक है। आरओ की सप्लाई से ही पानी अच्छा रहेगा? नहीं, जहां पे मैं हम्म, पानी स्टोर कर रहा हूँ वो एरिया क्लीन रहना चाहिए। अब ओके। सपोज करो पानी, हाँ, वो एरिया क्लीन नहीं था, आरओ की हम्म, सप्लाई तो आ रही थी, लेकिन आरओ भी ठीक चल रहा था, लेकिन पानी जहां स्टोर कर रहे थे वो एरिया क्लीन नहीं था। अब बिकॉज वो एरिया क्लीन नहीं था, हम्म, क्योंकि वो एरिया क्लीन नहीं था, इस वजह से वो हम्म, पानी गंदा हो गया, और वो पानी पी के वो बीमार पड़ गया। ठीक है, तो अब हम्म, क्या है, ऐसे में अब समझ में आया कि भाई अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस देनी चाहिए तो हमको कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड्स हम्म, कि भाई कि हम्म, भाई ये एक स्टैंडर्ड ये बना दिया कि भैया हम्म, रेगुलरली हर 2 महीने में, हर 3 महीने हम्म, में जो हम्म, एरिया है जहां पानी हम्म, स्टोर्ड है, उस हम्म, एरिया को हमें क्लीन करना है। हम्म, हम्म, ठीक है, जब हम्म, वो हम क्लीन कर देंगे, जब वो क्लीन हो हम्म, जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? चांसेस ऑफ इन्फेक्शन
नील हो जाएंगे। ठीक है, तो हम्म, ये हम्म, अगर ये स्टैंडर्ड बन जाए हम्म, तो क्या होगा, हम्म, चांसेस ऑफ स्टमक इन्फेक्शन विल गो डाउन, डाउन, है ना। तो अब क्या हुआ कि भाई ये स्टैंडर्ड कौन बनाए, तो एक हम्म, ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है एनएबीएच। हम्म, उसने क्या करा, ऐसे 650 स्टैंडर्ड्स बना दिए हॉस्पिटल के लिए। जो हॉस्पिटल इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा उसको बोलेंगे एनएबीएच एक्रेडिटेड। क्यों? क्योंकि वो भाई क्वालिटी सर्विसेज दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है। जैसे एक स्टैंडर्ड में होता है ना, पानी की सफाई, टैंक की सफाई हर 3 महीने में होनी चाहिए, है ना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना। तो इसी को ओके। बोलते हैं एनएबीएच एक्रेडिटेशन। ये सारा क्वालिटी में काम आता है कि आज जो एनएबीएच ने स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, क्या वो हॉस्पिटल फॉलो कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो एनएबीएच एक्रेडिटेड है, नहीं कर रहा तो वो नहीं है। ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल। यस। हाँ, तो ओवरऑल ओवरऑल क्या सिचुएशन बनती है इसमें कि क्या अगर एक्रेडिटेशन है तो अच्छी बात है या बुरी बात है, वो देखना पड़ेगा। नहीं है तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है। श्योर सर। ठीक है। सो ये क्वालिटी का काम है, ऑपरेशंस का काम है। ठीक है। ऑपरेशंस का काम क्या है? एनीथिंग और एवरीथिंग विच हेल्प्स इन रनिंग द बिजनेस स्मूथली with profit is called operations, and anything or everything follow which tells the which encourages the hospital to follow the standards is called क्वालिटी। quality। ठीक है। बिकॉज अभी अब वो स्टैंडर्ड्स कहाँ लिखे हुए हैं? जेसीआई की बुक में लिखे हुए हैं, जैसे की एनएबीएच बुक ने में। बनाए हुए हैं स्टैंडर्ड्स। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ऑपरेशंस के क्या है, मतलब ये हॉस्पिटल का ऑपरेशंस में क्या है, वो रेगुलरली क्या है, कॉमन सेंस से निकल के आता है, जो भी बिजनेस जो है। ठीक है। अब अगर हम्म, हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट मेडिको लीगल केस आ जाए, तो अब हम्म, एडमिनिस्ट्रेटर को जाना है वो सॉल्व कराने के लिए। डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करेगा अपना, तो एडमिनिस्ट्रेटर को बिल्कुल, लॉ पता होनी चाहिए क्या है। बिल्कुल, जैसे फॉर एन बिल्कुल। एग्जांपल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से बता देता हूँ मैं आपको। हम्म, इट्स अ रियल केस दैट हैज हैपेंड इन वन ऑफ द हॉस्पिटल्स। एक लड़का हम्म, लड़की जो है वो हॉस्पिटल हम्म, पहुंच गए। लड़की हम्म, बोलने लगी कि भाई मतलब मेरे को टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराना है। ठीक है। हम्म, अब क्या हुआ, उन्होंने कहा जी करा देंगे, कोई बात नहीं। तो उनसे आधार कार्ड मांगा, क्योंकि आधार कार्ड मांगना पड़ता है ना, रजिस्ट्रेशन करने के लिए हॉस्पिटल में। आधार कार्ड मांगा तो उसमें देखा कि उस लड़की की एज थी 17.5 साल। अब जैसे ही ये लड़की की एज 17.5 साल हुई, ये एक बहुत ही सीरियस केस बन गया। इट इज अ केस ऑफ पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अब उसमें ये था कि लड़का लड़का और लड़की, मतलब एनी प्रेगनेंसी हैपनिंग टू अ गर्ल बिलो द एज ऑफ 18 वुड बी कंसिडर्ड एज अ रेप। मतलब कि लड़के ने रेप किया है लड़की का, क्योंकि लड़की उस एबिलिटी में नहीं है कि वो कंसेंट दे सके, क्योंकि वो भी माइनर है। और ऐसे में अगर अगर कुछ हो जाता है, मतलब इस केस में बहुत ही इशू इशू वाली चीज है। मतलब ये कहने का मतलब है, उस केस में लड़के को जेल हो सकती है। ठीक है। ठीक है। ओके। नाउ नाउ ये जो हम्म, प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। अब हाँ। इसको डील करने में हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं आएगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर को जाना है, और सारी हम्म, पुलिस को बुलाना, पुलिस को इन्फॉर्म करना, सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन को फुलफिल करना, सारे मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन को फुलफिल करना, ये सारा काम किसका है? एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है। so that becomes a part of the administration, this is the part of operations। अब ये क्या है, हॉस्पिटल के इसके लिए एनएबीएच ने ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया हुआ है। एनएबीएच ने क्या लिखा हुआ है? हॉस्पिटल शुड फॉलो ऑल द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिलेटेड टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब मेडिकल ऑफ टर्मिनेशन ऑफ, उन्होंने बस सिंपल लिख दिया कि भाई एमटीपी एक्ट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हॉस्पिटल को फॉलो करने चाहिए। अब उन्होंने ये तो बताया नहीं कौन से हैं, तो इसका मतलब आपको खुद से पढ़ना है एमटीपी के एक्ट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और वो आपको फॉलो करने हैं। फॉलो करना है। ठीक है। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। इट्स ऑल कोरिलेटेड, लाइक स्लोली एंड हाँ स्लोली हाँ हाँ, कनेक्टेड तो टू कनेक्टिंग ईच एवरी डॉट। ऑपरेशंस, हाँ, ऑपरेशंस इज वेरी वास्ट देन क्वालिटी।
मतलब इट्स ऑपरेशंस नॉट का कोई सो, एंड नहीं है। बट इट्स नॉट सो रियल टाइम डेटाबेस, मतलब क्वालिटी में मैंने जो देखा, मतलब हर चीज के लिए डेटा बनाना पड़ता है, वो ये डेटा बनाना कलेक्ट पड़ता है, करना, तो बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, इसमें उतना डेटा देखो डेटा कलेक्ट क्यों नहीं है। कलेक्ट करते हैं, नहीं ऐसा कुछ डेटा कलेक्शन का इतना कुछ होता नहीं, बट हाँ इसमें डेटा क्यों हम्म कलेक्ट करते हैं ये भी समझ लो, ठीक है। हम्म हम्म जैसे क्या हुआ कि अ, पता चला एक हॉस्पिटल में कहीं पर पेशेंट फॉल हो गया, हम्म किसी प्लेस ए पे पेशेंट फॉल हो गया एक हम्म दिन, ठीक है। हम्म फिर पंद्रह हम्म बीस दिन बाद भी मतलब प्लेस ए पे, हॉस्पिटल में प्लेस ए है कोई, वहां पर ही हम्म फॉल हो गया दोबारा से। फिर और एक महीने हम्म बाद दोबारा से फॉल हो गया, फिर एक और एक महीने बाद दोबारा से फॉल उसी जगह पे हो गया, ठीक है। हम्म अब मैंने मेरे पास डेटा कलेक्टेड है, ये मैं एक दिन बैठा और मैंने सारा डेटा पूरे साल का देखने लगा, तो मैंने देखा हम्म हॉस्पिटल में टोटल टोटल एक साल के अंदर 20 पेशेंट फॉल हुए हैं, 20 ठीक है। हम्म और उसमें से 15 पेशेंट फॉल जो हुए हैं पेशेंट प्लेस ए पर ही हुए हैं। तो इसका हम्म मतलब यार ये तो कुछ गड़बड़ है प्लेस ए में, क्या गड़बड़ है, हम्म तो वहां पे जाके उस एरिया को चेक किया गया, तो आइडेंटिफाई हम्म किया गया कि वहां पे एक बहुत माइनर सा स्टेप है, और उस स्टेप में हम्म क्या होता है कि लोग ध्यान दे नहीं पाते, और उसमें एकदम से वो फंस के गिर जाते हैं, ठीक है, बहुत ही माइनर सा स्टेप है। अब कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी रीजन होता है, या फिर वहां से क्या है पानी लीक करता रहता है आसपास से, रेगुलरली पानी लीक करता रहता है, पेशेंट स्लिप हो गया वहां पे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये यस डेटा यस। मेरे को हेल्प करेगा जानने में, अच्छा। इसीलिए डेटा ओके कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके, फॉल देखो के डेटा के पे कितना हुआ। एक इंग्लिश में सेइंग है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स हाँ मैनेज्ड। हाँ 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 हाँ। आर वी ऑल ओके। क्लियर विद दिस? यस यस यस। चलो, एनीथिंग एल्स? नथिंग। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। The medical termination of pregnancy amendment bill 2020. The termination of pregnancy under the act of pregnancy must be terminated within 12 weeks if registered medical practitioner is one of the opinion that continuation of the pregnancy may risk the life of the mother and cause grave injuries to her health, or there is a substantial risk and that the child if born would suffer physical and mental abnormalities. For termination of a pregnancy between 12 to 20 weeks, two medical practitioners are required to give their opinion. Yes, आर वी क्लियर? yes. अगर 12 हफ्ते तक है तो एक आरएमपी के उससे हो सकता है, और अगर 12 से 20 हफ्ते तक है तो दो Hmm. आरएमपी का चाहिए हमको। Hmm. यस प्लीज। The Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2020. The bill amends this provision to state a pregnancy may be terminated within 20 weeks with the opinion of a registered medical practitioner. Approval of the two registered medical practitioners will be required for the termination of pregnancies between 20 to 24 weeks. The termination of pregnancies up to 24 weeks will only be applied to a specific category of the women or may be prescribed by the central government. Further, the central government will notify the norms of the medical practitioner when the opinion is required for the termination of pregnancy. आई थिंक दिस इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बारह Yes. 20 से 24 हफ्ते तक किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें कि दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स की टर्मिनेशन की वो चाहिए, और 24 हफ्ते के बाद में Hmm. आपको स्पेसिफिक कंडीशन में दिया सकता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट Hmm. परमिशन देगी इस बात की, Hmm. Hmm. ठीक है। Hmm. ओके। Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2020. Constitution of Medical Board. The bill states that the upper limit of the termination of the pregnancy will not be applied comes in if such termination is necessary due to the diagnosis of the substantial fetal abnormalities. These abnormalities will be diagnosed with the medical board under the bill. Every state government require a constitutional medical board. This medical board will consist of the following member: a gynecologist, a pediatrician, a radiologist, and sonologist. Any other member of the members are may be notified by the state government. Note that the central government will not notify the power of the function of the medical board. देखो, अब क्या है Hmm. कि भाई मतलब जो 24 हफ्ते से ज्यादा है उसको कैसे करेंगे? एक मेडिकल बोर्ड होगा, उसमें Hmm. गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट या फिर मतलब सोनोलॉजिस्ट, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, और वो डिसाइड करेंगे मिल करके कि किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या बिल्कुल करना सर। चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक। ठीक है। हम्म।
The termination of pregnancy amendment bill is protection of privacy and women. The bill states that there is no registry medical practitioner will be allowed to reveal the name of the other particular of a person, woman, whose pregnancy has been terminated, except to a person authorized by any law. Anyone who contravenes the provision will be punishable with the imprisonment or up to the 1 year with a fine or both. ठीक है, कोई कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है विल बी अलाउड टू रिवील, मतलब उसका नाम नहीं बताया जाएगा, पर्टिकुलर्स ऑफ उसकी वुमेन के कोई भी पर्टिकुलर्स नहीं बताए जाएंगे, ठीक है, वेदर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है, ठीक है, एक्सेप्ट टू अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय द लॉ, ठीक है, मतलब कोर्ट जिसको बोलेगा या लॉ जिसको बोलेगा उसी उसी को बताया जाएगा। और इसका उल्लंघन करने वाले को, कोई भी अगर इसका वॉयलेट करता है, कॉन्ट्रावीन मतलब उल्लंघन करना, तो उसको ऑफेंस होगा, मतलब उसको पनिशेबल ऑफ पनिश 1 साल तक की सजा होगी, ठीक है, और क्या बोलते हैं और फाइन भी हो सकता है। हम्म। Provision of medical termination of pregnancy, Bill 2020. The bill proposes a requirement of the opinion of one registered medical practitioner (RMP) for termination of pregnancy after 20 weeks of gestation. Similarly, it is also provide for the requirement of opinion of two RMPs of the termination of the pregnancy of 20 to 24 weeks. The bill also seeks an increase in upper gestation limit of 20 to 25 for survivors of the rape victims or incest and other vulnerable women. It also includes minor girls. The bill seeks to relax the contraceptive failure condition of any woman of her partner from the present provision only married woman and her husband, allowing them to medically terminate the pregnancy. So I think this is also self-explanatory, fine. Yes. Significance of the bill will provide a greater reproductive right of the woman as an abortion is considered as the important aspect of the reproductive health of a woman. The deaths and injuries of an unsafe abortions are largely preventable provided services are performed legally and by trained practitioners. This will help the decrease in mental morbidity and mortality and also be help in preventing wastage of resources and invested in a pregnancy. The special categories of a woman include the rape survivors, victims of incest, and the differently able and minors. ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव राइट्स देता है, मतलब जो रेप सर्वाइवर्स होते हैं उनको उनको हम्म, हेल्प करता है, ठीक है, हम्म, एंड हम्म, डेथ्स एंड इंजरीज फॉर अनसेफ अनसेफ अबॉर्शन। इंडिया में अनसेफ अबॉर्शन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा बहुत हाँ। ज्यादा, मतलब हम्म, अ लॉट ऑफ अनसेफ अबॉर्शन आपको, मतलब आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि भाई भभूत लगा लो, ये भभूत खा लो तो इससे प्रेगनेंसी हम्म, हो जाएगी एंड ऑल दैट। इंडिया में ये बहुत हम्म, बहुत कॉमन है, ये उन सबको हाँ, थोड़ा प्रिवेंट करेगा। प्रेरित करें। एमटीबी 1971 एंड एमटीबी अमेंडमेंट बिल 2020 से बहुत छोटा है दिखने में मेरे फोन पे। एक नाउ इज इट विजिबल? हाँ। So this Neer Amaya is what, like it's an organization or something like that? क्या चीज? Neer Amaya. नहीं नहीं, वो तो मतलब ऐसे ही है ये, चलो आप आगे अच्छा। पढ़ो जो उसमें है। MTP Act 1971, the one registered and recognized medical practitioner, in opinion to terminate the pregnancy along with the consent of the mother, is required to terminate the pregnancy till 12 weeks. Two or more registered and recognized medical practitioner is needed for 12 to 28 weeks. It doesn't mention clearly about the confidentiality privacy of the woman and the case. MTPM, once registered and recognized medical practitioner is opinion to terminate the pregnancy along with the consent of a mother is required to terminate the pregnancy till 28 weeks. Two or more registered and recognized medical practitioners opinion of terminating the pregnancy along with the consent of the mother is required to terminate the pregnancy 20 to 24 weeks. This amendment represents the protect of women's privacy and confidential of the data related to termination of ठीक है, pregnancy. तो 71 में क्या था, पहले 71 वाले एक्ट में क्या था कि 12 हफ्ते तक एक की चाहिए, यहाँ पे इसको बढ़ा के 20 हफ्ते कर दिया गया है। यहाँ पे हम्म, पहले क्या था कि 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायर्ड होगा 12 से 20 हफ्ते तक के लिए, यहाँ पे इन्होंने हम्म, बढ़ा के कर दिया है, 20 से 24 हफ्ते कर दिया है उस चीज को, हम्म, ठीक है। और ये इसने बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं करी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी के बारे में, इसने इतने को बोला है कि भैया ये हम्म, पनिशेबल ऑफेंस है अगर अगर बच्चे अगर मदर की जो वो है वो रिवील हो जाती है तो, प्राइवेसी एंड अच्छा अच्छा कॉन्फिडेंशियलिटी रिवील हो जाती है तो। ठीक है। हम्म। Ensuring safety and well-being of a woman. Amendment of sorry. Okay. Additional information about FTP. Why 20 weeks window isn't enough?
Most fetal abnormalities are detected that after 19th week, by the time parents decide to abort, it is too late. Many present Indian doesn't have the abdomen's ultrasound and ultrasound due to which some of the abnormalities are detected late. What are the countries? Why 20 countries is it enough? Okay. What are the other countries do? Many European countries, including France, UK, and Italy, and even Nepal, allow the abortion after 20 weeks if the fetal abnormalities are discovered. The 23 countries include Canada, Germany, Vietnam, and allow abortion at any time if the request is based on the social media, social or medical reasons. Ensuring safety and well-being of women. An amendment in the Medical Termination Program Pregnancy Bill increase the limit of pregnancy to 20 to 24 weeks, limit not to apply to in case of substantial fetal abnormalities, to expand the access of the women to the safe and legal abortion service, discourage informal abortion, identity of a woman terminated pregnancy not to be revealed and another authorization of the law. अभी सर वो कौन सा नॉर्वे या कहीं पे भी कोई एक्ट है ना कि उसका कुछ एबॉर्शन का कुछ नहीं हो सकता है, कहीं तो पढ़े थे आप लोगों ने देखो ये कि वर्ल्ड में बहुत। चलता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमारा हाँ। ज्यादा कंसर्न वो होना चाहिए जो इंडिया में चल रहा है, ठीक है। अब हो हम्म। सकता है आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है, ठीक है। हम्म। हमें ये पता होना हम्म। चाहिए इंडिया में क्या है, जिस जिस ज्यूरिसडिक्शन में हॉस्पिटल आता है उस ज्यूरिसडिक्शन में क्या चल रहा है, बस सिंपल बात, ठीक है। नॉर्वे कोई पेशेंट कोई इंडियन काउंसलर का डेथ भी मतलब सेप्टिसेमिया से डेथ भी हो गया था, हाँ तो कुछ न्यूज आया था। अच्छा सेप्टिसिमी में से, ठीक है। हाँ मतलब वो जो अबॉर्शन करने नहीं दिया था, फिर पता नहीं वहाँ के लीगल नहीं है, जैसे नॉर्वे में ऐसे कुछ तो है स्कैंडिनेवियंस का वैसा। हम्म, Offenses and please। penalties. Violation. The termination of pregnancy by a person who is not registered medical practitioner. Whoever terminated pregnancy is a place is that unapproved. If a person willfully contravenes or willfully fails to comply with the requirement of any regulation made, termination of pregnancy is violation of provision of Act of 19 as often were punishable with rigorous imprisonment or for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 9 years. Termination of pregnancy is violation of provision Act is 19 and is often punishable with rigorous imprisonment or for a term which shall not be less than 2 years by which it may extend to 7 years. Penalty of 1,000 rupees. All offences under the Act are cognizable, non-bailable and non-compoundable. अच्छा ठीक है, ये आपको ये पता है व्हाट आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ये पता है आपको क्या होता है? मर्डर इज नॉन बेलेबल ऐसा कुछ तो होता है। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं क्या होता है हाँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस जिसमें कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, जिसमें कि कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए उनको, वो चाहे तो आपको अरेस्ट कर सकती है। ओके। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मतलब कोई पॉक्सो का ऑफेंस है, ठीक है, हम्म। तो उसमें क्या होगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, हम्म। ठीक है। हम्म। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो इन दैट केस द पर्सन कैन बी अरेस्टेड, ठीक है। हम्म। तो उसमें हम्म। कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। हम्म। सो इट इज कॉल्ड अ हम्म। कॉग्निजेबल ऑफेंस। हम्म। तो इसका ऑपोजिट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होगा, हम्म। बताओ? सॉरी सर एक बार फिर से बताइए फिर थोड़ा सा ठीक से। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस हम्म। पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के भी अरेस्ट कर सकता है, ऐसा ऑफेंस ठीक है। जिसमें हाँ। कि कॉग्निजेबल है अगर, तो हम्म। उसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी हम्म। कोर्ट परमिशन, और सब बिना उसके भी अरेस्ट कर सकती है आपको। ठीक है। किसी की ठीक है। परमिशन नहीं चाहिए उनको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो ठीक नॉन है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होगा? उसमें आपको ये चाहिए होगा, परमिशन चाहिए होगा, वारंट चाहिए हाँ, होगा पुलिस शायद फॉर आपको एग्जाम्पल। डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती ऐसे। नहीं कर सकते हाँ सर। जैसे छोटे मोटे ऑफेंसेस हो गए, ठीक है, हम्म। किसी ने किसी को एक हम्म। थप्पड़ मार दिया सपोज करो, तो इन हम्म। दैट केस हम्म। इट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, हाँ उसमें नॉन पुलिस आपको कॉग्निजेबल। अरेस्ट नहीं कर सकती है। नहीं कर सकते ठीक है। तो इसका मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कैसे ऑफेंसेस होंगे, सीरियस नेचर के होंगे या फिर लाइट नेचर के होंगे, सीरियस नेचर के। ठीक है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस नॉन सीरियस।
मतलब उतना भी ग्रीवियस नहीं समझ है। में आ गया, चलो ठीक है। हम्म, अब नाउ द अदर वर्ड इज बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ठीक है, हम्म, बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिसमें कि पुलिस अपने बिहाफ पर बेल देकर, बेल मतलब अपना एक बॉन्ड साइन करा लेंगे वो, और हम्म, पुलिस ही उसको बॉन्ड साइन करा के उसे बेल दे देगी कि भाई जाओ, आप हम्म, चले जाओ, कोई बात नहीं, अगली बार जब हम आपके घर आएंगे या कहीं भी आएंगे तो आप इधर आ जाना। ओके। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ बेलेबल ऑफेंस। ठीक बिल्कुल है, फिक्स है। हाँ। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? नॉन अवेलेबल। हाँ, नॉन बेलेबल में क्या होगा? ओके, मतलब ये है कि मतलब बेल मिलेगा नहीं। नहीं नहीं, कौन नहीं देगा मिलेगा बेल? और अरेस्ट पुलिस। हो जाएंगे, बाद में बेल बेल लेके आ सकते हैं वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, सुनो, दोबारा सुनो। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पे कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही बेल दे सकती है और कोई और बेल नहीं दे सकता। बेलेबल ऑफेंसेस में क्या है? पुलिस भी बेल दे सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही बेल देगा और कोई और बेल नहीं दे सकता। ठीक है। अच्छा, पहले तो ओके। एक 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 स्टेप पहले आते हैं। व्हाट इज बेल? बेल क्या होता है? It's a bail is something like it's a guarantee or assurance given by particular authority or organization or court for हम्म the particular person who has been accused and हम्म who has been taken to custody. Can हम्म मतलब अंडर बाय सुपरविजन और अंडर बाय गारंटी और वारंटी जो भी बोलता है उसके चलो ठीक है, उसके पहले हम हिसाब ये से। समझ लेते हैं व्हाट इज बेल। देखो क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, दो तरह के केसेस होते हैं कोर्ट में। एक केस होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस। ये बात याद याद है, हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है। सिविल केसेस में क्या है? दो लोगों में आपस में सिविल केस है। ठीक है, पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ बोला है। ठीक है, मतलब उनका जैसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, डाइवोर्स डिस्प्यूट हो गया, गार्डियनशिप डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरह के सिविल, इसमें किसी को सजा नहीं होगी, मतलब इसमें किसी दूसरे को सजा नहीं होगी इसके अंदर। इसमें सामने वाले को क्या होगा कि भाई या तो इकोनॉमिक हो जाएगी या मतलब उनके राइट्स को रिस्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे गार्जियनशिप है, फादर कहता है कि मुझे अपने बच्चे की कस्टडी चाहिए। ठीक है, मदर कहती है मुझे चाहिए। तो कोर्ट इस केस में ये डिसाइड नहीं करेगा कि भैया कि तुमको सजा हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फादर क्या करेगा? अगर कोर्ट क्या करेगी, चलो फादर को कस्टडी देनी है तो फादर को दे देंगे। ठीक है, मदर को ऑर्डर दे देंगे कि आपको आपको क्या है, ये कस्टडी छोड़, आपको हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये कस्टडी फादर को दे दी जाए। ठीक है, तो बस इतना ही कर सकता है, उसमें जेल नहीं भेज सकते कि भाई जेल भेज दिया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस, जैसे कोई क्राइम हो गया हो, तो क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। अगर किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का मर्डर कर दिया है, ठीक है, तो मर्डर करने का मतलब क्या होता है? मर्डर कर दिया उसने, मतलब कि ये क्राइम है। इस क्राइम के लिए केस कौन डालता है? जैसे फादर और मदर में कस्टडी के लिए किसी एक ने केस डाला होगा, है ना? लेकिन अगर क्राइम क्राइम जहां पे होता है वहां पे केस डालती है पुलिस। पुलिस केस डालती है कोर्ट में, ये बोलती है कि ये आदमी जो है इसने ही क्राइम किया है। ठीक है। अब क्रिमिनल केसेस में होता क्या है? क्राइम जो होता है, क्राइम क्राइम के लिए अब देखो, अगर सिविल केसेस में सपोज करो एक हस्बैंड वाइफ के मैटर में हस्बैंड ने डाली गार्जियनशिप, ठीक है, और अगर मदर अपीयर नहीं होती केस में, तो क्या होगा? ना हो अपीयर कोई बात नहीं, तो मैक्सिमम कोर्ट क्या करेगी? एक तरफा सुन के, एक तरफ की बात सुन के, सिर्फ एक तरफ की बात सुन के कोर्ट ये डिसाइड कर देगी, सिर्फ एक तरफ की बात सुन के कोर्ट क्या डिसाइड कर देगी कि भाई बच्चे को मतलब बच्चे को किसकी कस्टडी में रखना है। अब अगर सामने वाली पार्टी नहीं है तो वो सिर्फ फादर को सुन रहे हैं,
तो फादर को कस्टडी दे देंगे उसकी। समझ में आ गई? बस यही होगा, सामने वाला ये चूज कर सकता है कि वो आए या ना आए केस में। ठीक है। अच्छा, क्रिमिनल केस में क्या है? क्रिमिनल केस में तो जेल होनी है। अगर ये प्रूव हो जाए कि इस आदमी ने क्राइम किया है, तो ये प्रूव हो जाएगा तो जेल में जाना पड़ेगा उसको। ठीक है। तो ये अश्योरिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है कि भाई अगर किसी किसी पर्सन ए ने पर्सन बी के खिलाफ कोई मतलब सॉरी, पुलिस ने किसी मर्डर को ये बोला है कि ये इसने मर्डर किया है, तो कोर्ट पूछता है क्या तुमने मर्डर किया है? ठीक है। तो ऑब्वियसली वो मर्डरर क्या बोलेगा? नहीं नहीं, मैंने मर्डर नहीं किया। अब मतलब पुलिस मतलब जो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट कहती है कि भाई ये क्रिमिनल केस है, तो कहीं तो भाग गया तो एक काम कर, तू मेरी मेरी कस्टडी में रह ले, मेरी कस्टडी में रह ले। मेरी मतलब कोर्ट की कस्टडी, दैट मीन्स जुडिशियल कस्टडी में रह ले तू। अब जज जो है, जज के पास में कोई ये तो है नहीं कि अपना अपना कोई आलीशान घर है उसमें उसमें रख रखा है उसने, नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं ना, जेल में भेज देते हैं कि भाई वहां पे तुम आराम से रहो, जब तक तुम्हारा केस चल रहा है तुम आओ और केस की प्रोसीडिंग्स करो। ठीक है। इसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। ठीक है। अब क्या होता है कि वो जो मर्डरर होता है वो ये सोचता है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वो एक रिक्वेस्ट करता है जज साहब से कि जज साहब आप भरोसा करो मुझ पे, मैं मैं जब आप कहोगे मैं तब आ जाऊंगा, आप प्लीज मुझ पे भरोसा करो। तो जज बोलता है कि मैं क्यों भरोसा करूं? ठीक है। तो तो वो बोलता है कि ये देखो, ये दो लोग हैं, ये दो लोग मेरी गारंटी दे रहे हैं कि मैं जब भी केस होगा मैं यहाँ पे प्रेजेंट होऊंगा। ठीक है। तो कह रहा है पक्का? कह रहे हाँ। तो कह रहे कि तो इनकी क्या गारंटी है? आप इनके जो है इनसे 10,000 50,000 के बॉन्ड साइन करा लो। ठीक है। कि अगर मैं प्रेजेंट नहीं हुआ तो ये 50,000 रुपए इनके आप अपने पास में रख लेना। ठीक है। तो कोर्ट सोचता है, समझता है, फिर वो सोचता है कि चलो बेल दे। फिर वो क्या करता है? वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम क्या है, जब तक ये केस चल रहा है तुम घर पे रह लो, जेल में मत रहो, आप घर पे रह लो। ठीक है। इसको बोलते हैं बेल मिल जाना। मतलब आप टेक्निकली आपको जुडिशियल कस्टडी में रहना है, जुडिशियल कस्टडी में जज का अपना घर नहीं होता है, तो वो जेल में भेज रहा है कि यहाँ पे बैठो आप। ठीक है। लेकिन लेकिन जो जो अक्यूज्ड है, जो मर्डरर है, वो ये कह सकता है कि आप मेरे पे भरोसा करें, जब भी आपका क्रिमिनल केस की तारीख होगी मैं आऊंगा। कौन गारंटी दे रहा है? ये दो लोग मेरी गारंटी दे रहे हैं, ये 1-1 लाख रुपए की गारंटी दे रहे हैं ये भी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेल मिलना, इसको बोलते हैं बेल। और ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कोर्ट दे सकता है ये वाली बेल। ठीक है। बेल जो है कोर्ट दे सकता है, कोर्ट भी दे सकता है, पुलिस भी दे सकती है। क्योंकि पुलिस को भी इस बात का डर है कि भैया कोई कोई अगर मर्डरर है कहीं भाग ना जाए, तो भाई हम हमें बता, हमें हमें जो है, हमें हमें हमको तू 50,000 रुपये जमा कर दे कि तू आएगा। ठीक है। सो इसको बोलते हैं मतलब बेल मिल जाना। तो बेल पुलिस भी दे सकती है और कोर्ट भी दे सकता है। ठीक है। जो जिसमें बेल जो है पुलिस दे सकती है उसको बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस, और जिसमें बेल जो है सिर्फ कोर्ट ही दे सकता है, दैट इज कॉल्ड नॉन बेलेबल ऑफेंस। हमें समझ में आ गया बेल क्या होता है? यस सर। अच्छे से समझ यस में आ सर। गया अभिषेक? जी सर। कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, हम्म। बेलेबल ऑफेंस सीरियस नेचर का होगा या नॉन बेलेबल ऑफेंस सीरियस नेचर का होगा? तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा जो है वो सीरियस नेचर का होगा, बेलेबल तो सीरियस नेचर की नहीं। नहीं होगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि वो सीरियस हम्म। नेचर का है, छोटे मोटे छोटी मोटी कोई चीज हुई है। ठीक है। हम्म। तो उसके अंदर उसमें क्या है कि मतलब जो बेल है वो पुलिस ही दे देती है, छोटी मोटी अगर कोई चीज हुई है तो। लेकिन अगर हम्म। बड़ी चीज हुई है, कोई मर्डर जैसे हुआ है, मर्डर रेप जैसे वो सीरियस हम्म। क्राइम हुआ है, तो उसमें क्या होगा, हम्म। सिर्फ कोर्ट ही बेल दे सकती है। कोटी बेल दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट तो आता है कंपाउंडेबल पुलिस ऑफेंसेस। हाँ जी। पुलिस बेल देते हैं मतलब कि पुलिस अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या किसी हाँ लॉयर हाँ, को उसके सामने दे देते पुलिस ने उस आदमी को बोला
भाई एक तरह से कि भाई पुलिस ने उस आदमी को कहा कि मैं तेरे को अरेस्ट कर लेता हूँ अभी, ठीक है, कि भाई पता नहीं तो हमें इन्वेस्टिगेशन जो हमारी होगी उसमें तो साथ देना दे, ठीक है। तो पुलिस क्या बोलती है उसको, वो कहता है पुलिस को कि नहीं जी मैं बिल्कुल दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो कहते क्या गारंटी है, ये लो जी 50,000 रुपए का बॉन्ड, चल ठीक है, ठीक है, और आज जब हम बुलाएंगे तब तेरे को आना पड़ेगा, और अगर तू नहीं आया, अगर हमने हमारे बुलाने पे नहीं आया, तो अगले दिन हम तेरे को अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेलेबल। बेलेबल वो ऑफेंस होते हैं जो छोटे नेचर के होते हैं, जिसमें पुलिस ही बेल दे देती है, ठीक है। देखो पुलिस ठीक है। का तो ये बोला जाता है कि भाई मतलब वो जो वो करप्ट होती है और वो ऐसे ऐसे करके वो दे सकती है, इसलिए छोटे मोटे चीजों में, हर चीज में बेल अगर कोर्ट देगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, इसलिए छोटे मोटे केसेस, बहुत ही माइनर किस्म के जो केसेस होते हैं उसमें पुलिस भी बेल दे देती है, ठीक है। हेलो, यस, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। मतलब चलो मैं कंपाउंडेबल बता देता हूं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आप बताना। ऐसे ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस, जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, मार पिटाई हो गई उनके बीच में, ऐसे ऑफेंसेस, क्राइम्स जो कि दो लोग आपस में मतलब बातचीत करके सुलझा लें उसको, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ठीक है। आपस में सुलझा के ओके कर देंगे, चल मुझे तेरे खिलाफ कोई केस नहीं करना, मुझे तेरे खिलाफ कोई केस नहीं करना, ठीक है। दूसरा, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होंगे फिर? जो सुलह नहीं हो सकता है। बस सिंपल बात। तो अब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सीरियस नेचर के होंगे, नॉन कंपाउंडेबल? कंपाउंडेबल नॉन सीरियस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हो जाएगा सीरियस हाँ हाँ नेचर हाँ, के ना, सिंपल जो हो गया। सुलह नहीं कर सकते, मतलब म्यूचुअल सुलह नहीं कर सकते, कंसेंट से। मतलब कोई बहुत ही बड़ा क्राइम हुआ है, ठीक है। हम्म, हम्म, अब जैसे एक सिंपल सी बात है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, हाँ हाँ तो अब हाँ मुझे हाँ बताओ, इज इट अ कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस? डिपेंड्स। कॉमन सेंस से अगर बताओ। डिपेंड, अगर फॉर एग्जांपल, अगर अभी आज जैसे वो एक न्यूज़पेपर में है कि वाइफ ने हस्बैंड का मुंह तोड़ दिया और वो डेथ हो गया, सिर्फ उसको दुबई में विजिट नहीं हाँ करने तो ये दी क्या थी। होगा, वेरी गुड, तो ये कौन नॉन सा होगा, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल? नॉन कंपाउंडेबल हो गया ना, डेथ हो बस गया ना सिंपल बंदे बात, का। क्योंकि मर्डर हो गया उसके अंदर, सिंपल। हम्म, दो हम्म, हस्बैंड वाइफ में बहस हो गई आपस में, वर्बल कुछ वर्बल फाइट हुआ है, देयर इज नो फिजिकल फाइट हैपेंड, हम्म, तो इज इट अ कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस? मतलब क्या बोले, वर्बल फाइट हुआ, फिजिकल फाइट नहीं हुआ। हाँ। इट्स ए नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अरे भाई नॉन कंपाउंडेबल क्यों, कंपाउंडेबल है ना भाई। ओ कल सॉरी को सॉरी क्या है, सॉरी, प्लीज। हस्बैंड वाइफ आपस में सुलह करके अपने सारे मैटर खत्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। हाँ हाँ, मतलब वर्बल अगर है तो ठीक है, अगर वर्बल फिजिकल हो गया तो फिर नॉन कंपाउंडेबल। फिजिकल, हाँ, फिजिकल भी कंपाउंडेबल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि फिजिकल कंपाउंडेबल है, फिजिकल भी कंपाउंडेबल हो जाता है, लेकिन हम्म, किस ग्रेव हम्म, नेचर की इंजरी हुई है उससे पता चलता है, ठीक है। जैसे हम्म, मतलब इंजरी में हड्डी टूट गई है, मतलब उसने मारा इतनी जोर से कि उसकी हड्डी टूट गई है, दिस इज अ नॉन मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस, हाँ, ठीक एमएलसी है। आ गया फिर उसके बाद। हाँ हाँ हाँ, उसका एमएलसी भी जनरेट हो गया, तो इट बिकम्स अ नॉन हम्म, कंपाउंडेबल ऑफेंस, इतना आसान नहीं होता है इसको, हम्म, हम्म, ठीक है। और हम्म, फिर भी मतलब इसमें भी चांसेस होते हैं कि आपस में इसको मतलब डिसाइड किया जा सके। हम्म, हम्म, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस समझ में आ गया, ठीक है। हम्म, अब जैसे हम्म, सॉरी, कंपाउंडेबल समझ में आ गया, नॉन कंपाउंडेबल का एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे क्या हुआ, हम्म, हम्म, वाइफ एलिगेशंस लगाती है अपने हस्बैंड के खिलाफ, एलिगेशंस लगाती है कि भाई हम्म, मेरे को इन्होंने, आई वॉज प्रेग्नेंट, मेरे को हम्म, इन्होंने कुछ ऐसी दवा खिलाई, हम्म, ठीक है, कुछ ऐसी दवा खिलाई जिससे मेरी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई, ओके। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर ऐसी ऐसी प्रेगनेंसी मेरी टर्मिनेट हो गई, देखो हम्म, अब क्या है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, टर्मिनेशन कौन कर सकता है, हम्म, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर,
ठीक है। हम्म, तो ये कैसा ऑफेंस होगा भाई? देखो, एक एक्चुअल में एक लाइफ जो, हम्म, इट इज अ काइंड ऑफ अ मर्डर, एक लाइफ जो आ सकती थी और उसको उसको कुछ ऐसी दवाई खिला दी जिसकी वजह से उसकी टर्मिनेट हो गई प्रेगनेंसी। तो ये क्या हो गया, एक तरह से एक लाइफ जो है, लाइफ को, इट कैन बी कॉल्ड एज अ मर्डर, हाँ या ना? हाँ, it कैन can be इट बी called as a कॉल्ड एज, butter, यस ना? but because तो इसीलिए क्या होगा, ये नॉन कंपाउंडेबल नेचर का है कि भाई हाँ, एक आदमी का मर्डर हो गया है इसमें, ठीक है, हाँ, बिना तो एक कंसेंट तरह के, से, हाँ। हाँ हाँ हम्म, हाँ, तो इसमें क्या हो गया, दिस इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। हम्म, सो आर वी ऑल क्लियर विद द कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस? सर। कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ये चारों ठीक केस, है। ठीक है तो सर। अब हमने बात किया कॉग्निजेबल ज्यादा 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 सीरियस नेचर का है या नॉन कॉग्निजेबल? नॉन कॉग्निजेबल ना? नहीं 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 ब्रदर, कॉग्निजेबल। सॉरी, 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 हाँ, कॉग्निजेबल इज सीरियस सर। क्यों? ग्रीवियस, सर बोल। ग्रीवियसनेस, ग्रीवियसनेस ज्यादा है उसमें। नहीं 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 नहीं, पुलिस कैन मेक अरेस्ट, ठीक हाँ, है, हाँ, हाँ, पुलिस कैन अरेस्ट। हाँ, और हाँ, नॉन कॉग्निजेबल में क्या है, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट द परमिशन पुलिस ऑफ द में, कोर्ट, ठीक है। ओके। तो ये जो एमटीपी एक्ट है, ये कॉग्निजेबल है, नॉन, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल ऑफेंसेस ऑफ द एक्ट अंडर द एक्ट आर कॉग्निजेबल। दैट हाँ, मीन्स दीज आर, हाँ, पुलिस कैन अरेस्ट। पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है इस चीज में। हम्म, नॉन बेलेबल, इसका मतलब बेल हम्म, कौन दे सकता है, सिर्फ कोर्ट बेल दे सकती है। हम्म, नॉन कंपाउंडेबल, ये ऐसे नहीं है हम्म, कि दो लोग आपस में रिजॉल्व कर ले अपना डिस्प्यूट और ओके कर दे इसको, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। हम्म, देखो यहाँ पर एक पोटेंशियल मर्डर हो गया, एक तरह से इसको हम मर्डर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, और मर्डर भी उसका हो गया जो कि अनबॉर्न है अभी, ठीक है। हाँ, तो सुलह दो लोगों में होती है, तो दूसरा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, मतलब एग्जिस्ट ही हम्म, नहीं करा उसने तो बेचारे ने, तो इसीलिए इट इज हम्म, कॉल्ड अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। हाँ जी, हाँ जी सर। आर वी क्लियर? यस सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको तो क्या मतलब याद क्या कर। कंफ्यूजन है, बताओ बताओ, अभी डिस्कस कर लेते हैं, बताओ। नहीं सर, वो कॉग्निजेबल नॉन, मतलब भूल जा रहे हैं बार बार लिखने हुआ, तो उसको थोड़ा सा वो तो ठीक है, पॉइंट चलो बता। वो तो ऑब्वियसली आपने इतना पढ़ा नहीं है। कॉग्निजेबल वो ऑफेंसेस जिसमें कि हम्म, पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है, नॉन कॉग्निजेबल वो जिसमें पुलिस को परमिशन चाहिए कोर्ट से किसी को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। हम्म, बेलेबल वो हम्म, ऑफेंसेस जहां पे पुलिस बेल दे सकती है, नॉन बेलेबल सिर्फ कोर्ट बेल दे सकती है, ठीक है। हम्म, कंपाउंडेबल वो ऑफेंसेस जिसमें कि दो लोग आपस में सुलह करके अपना अपना झगड़ा निपटा सकते हैं, नॉन कंपाउंडेबल वो कि वो हाँ, सुलह करके भी नहीं हटा सकते अपना, हम्म, ठीक है। ठीक है। चलो, so this is what we have learned a bit about MTP, ठीक है। So this is another act which is called PCPNDT. Yes, please read सर, this. एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ ये जो बताओ। आईपीएसजी में एक्ट में जो हम 6 गोल्स के ऊपर अगर मैं लिख कर रहा हूँ, तो उसमें ये सब एक्ट्स डालना है क्या? पीएनडीटी, एमटीपी, ये सब की नहीं जरूरत नहीं, है कि नहीं? आईपीएसजी पेशेंट सेफ्टी गोल्स है, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ठीक। ठीक है। हम्म, ये एक अलग चीज है, उसमें क्या है, पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया, उसके बाद हम्म, उसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे ठीक है। उसकी सेफ्टी के लिए ये कर सकते हैं कि उसको एक यूनिक नंबर यूएचआईडी दे दें हम। हम्म, और जब भी पेशेंट को कोई भी दवाई एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है, हम्म, तो उसके यूएच नाम से और यूएचआईडी इन दोनों नंबर से कंफर्म करके ही उसको दवाई को एडमिनिस्टर करना हाई अलर्ट मेडिकेशन जिसमें। है ना। अदरवाइज क्या होगा, अगर पेशेंट ए को जो दवाई देनी है वो गलती से पेशेंट बी को चली गई, तो चलिए नुकसान है ना, हाँ, वो सेफ्टी बहुत बड़ा। कॉम्प्रोमाइज हो गई, वो अलग चीज है, ये हाँ, अलग चीज है। ठीक है। प्लीज।
What is female foticide? Female foticide aborting a female fetus for sex determination test. Ultrasonography helps determining abnormalities of the fetus, misused to find out the sex of the fetus and abort it if it is a girl. ठीक है, Okay. मतलब बेसिकली क्या है, पहले क्या होता था, पहले तो लड़का है या लड़की, ये बच्चा पैदा होने के बाद ही पता चलता था, ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा एक टेस्ट डेवलप हो गया जिससे कि पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। और इस अल्ट्रासाउंड के होने की वजह से क्या होता है कि भाई लड़का है तो अलग चीज है, लड़की है तो मतलब वो क्या करते हैं, लड़की को यही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा के उसको अबॉर्ट करा देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, फीमेल फीटस। जब वो फीटल स्टेज में होता है तो ही उसको मार देते हैं, तो इसको बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। आर वी क्लियर विद दिस? जब फीमेल फीटिसाइड होने लगा तो इससे क्या दिक्कत हुई, इससे ये हुआ कि अधिकतर लड़के ही पैदा होने लगे। जब लड़के ही पैदा होने लगे तो लड़कियों की शॉर्टेज हो गई, तो एक सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ गया। अब लड़के शादी किससे करें, ठीक है, शादी किससे करें, तो बैलेंस बिगड़ रहा था। इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वापस से क्या किया गया, एक एक्ट लाया गया जिसमें कि फीमेल फिटिसाइड इज एन ऑफेंस। इसको मतलब बैन किया गया, ठीक है। फीमेल फिटिसाइड तो पहले से ही बैन था, लेकिन जिस अल्ट्रासाउंड की वजह से ये हो रहा था, तो उस अल्ट्रासाउंड में भी ये क्लियरली बोला गया कि भैया अगर कोई भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते वक्त बच्चे का सेक्स रिवील करता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला, उसको एक पनिशेबल, उस डॉक्टर को सजा होगी, उस डॉक्टर को सजा होगी। दिस इज व्हाट इट सेज। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज गो अहेड, रीड दिस। Why is female foticide a problem? Increase in violence against women, violation of the human rights, abortion due to family pressure and have to male child, effect on mental and physical health of a woman, more men in society due to sex selective abortions. ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? Mhm. अच्छा, फीमेल फिटिसाइड के लिए कौन कौन से मतलब प्रोविजन है, ये देख लीजिए फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए। Indian Penal Code 1860, Section 312, without analyzing the threat to the life of a woman, without the consent of the woman, trying to cause miscarriage and thereby causing death. Section 314, Section 313, with the consent of the woman. Okay. 312, without analyzing the threat to the life of a woman. Section 315 is the act done to prevent a child from being born or born alive, concealing the birth of a child. ठीक है, ये इंडियन पिनल कोड में लिखे हुए हैं हमारे कि भाई अगर किसी भी लड़की का बिना उसके कंसेंट से अबॉर्शन कर दिया जाता है तो सेक्शन हम्म, 313 कहलाता है। अगर क्या है, हम्म, किसी लड़की का मतलब कोशिश की जाए कि भाई उसका अबॉर्शन कर दिया जाए, और अबॉर्शन हम्म, करते वक्त क्या हुआ, अबॉर्शन करने के और भी तरीके हैं, जैसे मतलब मैंने बताया ना, बबूत खिला हम्म, दो, दवाई खिला दो, ऐसे कुछ करके वो हम्म, करते वक्त हम्म, उस लड़की की डेथ हो जाती है, तो ये सेक्शन हम्म, 314 हो गया, ठीक है। हम्म, और हम्म, ऐसा कोई भी एक्ट जो कि एक बच्चे को पैदा हम्म, होने से, अलाइव होने से, ठीक है, हम्म, हम्म, बॉर्न अलाइव कंसीलिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, मतलब उसको रोकता है, तो उसको सेक्शन 315 में जाता है। okay. Indian Penal Code 1860, 316, act resulting in death of an unborn child, mother or father abandoning the child. Section 317, Section 318, secretly disposing body of child intentionally. इंटेंशनली, ठीक है, ये सब क्या हो गया हमारे आईपीसी हम्म, के प्रोविजंस हो गए। अब क्या है, पीसीपीएनडीटी एक्ट जो था उसके बारे में। हम्म। Prenatal diagnostic techniques include ultrasonography, fetoscopy, taking samples of amniotic fluid, embryo, blood and tissue, and fluid pregnant and women before any other conception, testing samples of generic laboratory detect genetic disorders, abnormalities, or sex-linked disease. ठीक है, ये सारे हम्म, हमारे पीएनडीटी के टेक्निक्स हैं। हम्म। प्लीज
Please go ahead. सर थोड़ा सा ऊपर वाला हाँ, टॉपिक दिख नहीं रहा ये PCPNDT एक्ट है, यही The लिखा हुआ है। Preconception Prenatal Diagnostic Technique Provision Sex Selection Act 1994 imposes restriction clinical medical personnel and sale of machines. Only registered genetic clinics can use prenatal diagnostic techniques by qualified medical practitioner. Provision of sex selection, provision of sale of ultrasound machine to unregistered laboratories or clinics and persons. तो पहली बात तो अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है, पहली बात तो क्या है, कोई भी बेच नहीं सकता ऐसे ही। ठीक है, मतलब अगर मुझे बेचनी है अल्ट्रासाउंड की मशीन तो मैं नहीं बेच सकता हूँ। मुझे क्या होना पड़ेगा, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कहाँ? अंडर दिस एक्ट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मुझे अपना नाम वाम देना पड़ेगा उनको। अच्छा। ठीक है। दूसरी बात, रजिस्टर्ड जेनेटिक क्लिनिक्स, मतलब जो जो भी रजिस्टर्ड क्लिनिक्स हैं वहीं पर ही ये पीएनडीटी की टेक्निक्स को अलाउ किया जाएगा। कौन कर सकता है? सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकता है। और मेडिकल प्रैक्टिशनर भी क्या करेगा? सेक्स सिलेक्शन की भाई, मतलब कि ये लड़का है लड़की, इस चीज को ना तो मतलब डिटरमाइन करेगा और ना ही बताएगा। ठीक है। और चौथा क्या है कि किसी भी अनरजिस्टर्ड लेबोरेटरी या क्लिनिक को कोई भी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं बेचेगा, कोई भी अनरजिस्टर्ड को। ठीक है, जैसे मैं हूं, मैं तो रजिस्टर्ड हूं कि मैं तो रजिस्टर्ड हूं कि भाई मतलब पीएनडीटी एक्ट के तहत कि मैं मशीन बेच सकता हूं। लेकिन मैं किसी ऐसे पर्सन को बेच रहा हूं जो खुद अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो ऐसे को मैं नहीं बेच सकता हूं। ठीक है। प्लीज Provision गो of sex selection. No person, including specialist of a team and specialist in the field of infertility, shall conduct or could be conducted the aid of conducting by himself or by any other person sex selection of a woman or man or both of the tissue by concept conceptus fluid of gametes and derived from either or both of them. ठीक है। सेक्स सिलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है, प्रोहिबिशन है उसके ऊपर। प्लीज। So provision of cell ultrasound machine, etc. Person laboratories, clinics, and not registered under the law. No person shall be sell ultrasound machines or imaging a machine or scanner or any other equipment capable of detecting sex of fetus to any genetic counselor, center, genetic clinic, or genetic laboratory, and any other person registered under this act. समझ में आ गया? हाँ, सेल्फ जो एक्सप्लेनेटरी अभी है ये। वो अभी जब आपने बताया हाँ, preconception of prenatal diagnostic techniques provision sex selection 1999 PNDT can be used to detect the abnormality chromosomal abnormality genetic metabolism hemoglobinopathy sex linked genetic disease congenital anomalies and any other abnormalities. ठीक है। हम्म, मतलब क्या क्या पीएनडीटी में किया जा सकता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी देखी जा सकती है, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज, हीमोग्लोबिनोपैथी, सेक्स लिंक जेनेटिक डिजीज, कोई जेनेटिक डिजीज है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, और कोई भी अदर एबनॉर्मलिटी को देखा जा सकता है। The Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Provision of Sex Selection Act 1994. PNDT is the following condition. Age of pregnant woman is above 35. Two or more spontaneous abortions. Pregnant woman has been exposed to drugs, radiation, infection, and chemicals. Family history of mental retardation or physical deformities. Any other condition. मतलब पीएनडीटी हम कब कर सकते हैं? जब एक महिला की उम्र जो है 35 साल से ज्यादा है। ठीक है। और दो उसके लगातार अबॉर्शंस हो चुके हैं, या फिर वो प्रेग्नेंट वेमेन को कोई ड्रग उसने ऐसे ले ली या रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया, तो इन दैट केस सपोज करो एक्सरे चला गया उसको पास में, तो बच्चे को इम्पैक्ट डाल सकता है, तो ऐसे केस में हम कर सकते हैं। ठीक है। प्लीज गो अहेड। Diagnostic Techniques Provision Sex Selection Act 1990. Essential communication. Explanation of all known side and other effects of test and procedures. Written consent in prescribed form or its copy given to her. Not to disclose sex of the fetus, word by signs, etc. Display prominently in local language that disclosure of sex and fetus prohibited under law. Registration of certificate to be displayed prominently in the clinic. ठीक है। आई थिंक दीज आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी।
अब इसमें रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन सी है? Regulatory policy making body, central supervisor body, board, state supervisor board, state appropriate authority by the implementation body, में से आता है state appropriate authority, district appropriate authority, sub districts appropriate authority. Advisory committee में state advisory committee, district advisory committee and sub district advisory committee. ठीक है, तीन तरह की बॉडी है। जो पॉलिसी बनाएगी वो सेंट्रल सुपरवाइजरी बॉडी एंड स्टेट सुपरवाइजरी बॉडी बनाएगी। इम्प्लीमेंट कौन करेगी? स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, सब डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ये इम्प्लीमेंट करेंगे। और एडवाइजरी कमिटी क्या है? स्टेट एडवाइजरी कमिटी है, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमिटी है और सब डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमिटी है। पॉलिसी बनाने का काम सेंट्रल और स्टेट सुपरवाइजरी बॉडी का है। उसको इम्प्लीमेंट करने का काम क्या है? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट का। एडवाइजरी बॉडी का काम क्या है? हमने ये देखा था डीएलसी वगैरह, जो एक कमिटी होती है, ये डिसाइड करती है कि क्या क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है, या इनका अप्रूवल चाहिए होता है तो उसको बोलते हैं एडवाइजरी कमेटी, जो फर्दर एडवाइस करती है कि क्या करना है हमने। हम्म। The preconception and prenatal diagnostic techniques provision of sex selection Act 1994 husbands and relatives cannot ask for encourage prenatal diagnostic techniques except for reason permitted under law. Publishing and advertising illegal, no person organizing counseling and center and clinic or laboratory is allowed. ठीक है, मतलब कोई भी एंकर पूछ नहीं सकता, कह नहीं सकता कि हमें पीएनडीटी कराना है, मतलब प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना है कोई भी। ठीक है, कोई ये नहीं भी कोई ये नहीं कर सकता। और इसको कोई, जैसे कोई क्लिनिक वाला है वो पब्लिश कर दे कि हमारे यहाँ पीएनडीटी होता है, ये भी करना इलीगल है। Preconception of prenatal diagnostic technique section 8 for violation imprisonment of 3 years or to 10,000 or 50,000 rupees fine, subsequently conviction of punishable with imprisonment for 5 years and rupees 50,000 to 1 lakh fine. Offense to be cognizable, non-bailable and non-compoundable. अब ये समझ में आ गई बात? ठीक है ठीक है, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। जी। हाँ जी, प्लीज कहिए। Implemented by appropriate authority role to grant, suspend or cancel registration, enforce standards, investigate complements of breach of the provisions. Complaints can be made by person, social and organization, chief medical officer to investigate, can appropriate court if chief medical officer does not take action, court, judicial magistrate, first class or metropolitan magistrate. ठीक है, ठीक है मतलब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का काम क्या है कि भाई सस्पेंड करना या कैंसिल करना रजिस्ट्रेशन, इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स कराना, किसी भी मैटर में इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, कोई भी आदमी कंप्लेन कर सकता है, सीएमओ भी कंप्लेन कर सकता है, एंड कैन अप्रोच कोर्ट इफ सीएमओ डज नॉट टेक एक्शन। ठीक है, ठीक है और कोर्ट में कौन काम करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी, इसको ही यही कोर्ट में करेगा। ठीक है, चलो। Advisory committee shall consist of 3 medical experts from gynecology, obstetrician, pediatrician, and medical geneticist. 1 legal expert, one officer to represent the deaf, dealing with information and publicity of the state government. 3 eminent social worker, at least one from the women organization. ठीक है, ये सब रहेंगे एडवाइजरी कमेटी में। Advisory committee may meet as necessary on the request of AA, the consideration of the application of registration and given to the advice thereafter, provided with the period of intervening between 2 meetings shall not be exceeded 60 days. 60 days. Rule 15. ठीक है, मतलब ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। मतलब बेसिकली क्या है कि एडवाइजरी कमेटी कब कब मिलेंगे? An application of registration may shall be made by AA. Advisory AA, sir, advisory एप्लीकेशन वो अथॉरिटी advisory authority in duplicate inform duly accompanied by the affidavit containing an undertaking of an effect that the genetic counseling center, genetic clinic, and genetic laboratory shall not be conduct any test or plan procedure for selection of sex before or any other conception of the detection of sex or fetus, except of disease specific by second 4/2, nor shall be the sex of the fetus to be disclosed to anybody. ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए।
Diagnostic Technique Provision of Sex Selection Act 1994. An undertaking of the effect that the Genetic Counseling Center, Genetic Clinic, and Genetic Laboratory shall display prominently a notice that they do not conduct any techniques or test or procedure, etc., whatever name called the detection of sex of fetus or for selection of sex before or any other conception. The advisory act of any person in his office and authorized in his behalf shall acknowledge receipt and the application of registration in an acknowledgement slip provided at the bottom of form of the A immediately if delivered at the office of the AA or not later than the next working day if received by the post. ठीक है, Hmm. दिस इज जस्ट सिंपल थिंग्स, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं आपको ना ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप ये पढ़ लेना, क्योंकि ये सिंपल चीजें हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर, बस ये आपको पढ़ना है, जिसकी कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले। हाँ, ये जैसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसको भी रजिस्ट्रेशन मिलता है उसको डिस्प्ले करना चाहिए, जो भी मतलब हॉस्पिटल है या जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है या जेनेटिक क्लिनिक है, इन सबको ये करना पड़ता है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कितनी होती है, पढ़ो। Validity registration. Every certificate of registration shall be valid for a period of 5 years from the date of issue. Cancellation or suspension of registration, that is A sub suo motu to complete of the issue notice at Genetic Counseling Center, Genetic Clinic, Genetic Laboratory to show the cause of his registration should not be cancelled or suspended for the reason mentioned in the notice. ठीक है, मतलब एडवाइजरी अथॉरिटी जो है, जो कभी भी बोल सकती है कि भैया आपका हम कैंसिल कर रहे हैं, या ये पूछ सकती है आपका क्यों ना कैंसिल किया जाए। ठीक है, तो ये वो कर सकते हैं, उनके हाथ में होता है ये, 5 साल तक वैलिड होता है ये। Uh, if after giving a reasonable opportunity of being heard to the Genetic Counseling Center, Genetic Clinic, Genetic Laboratory, and given regards to the advisory committee, advisory Act is satisfied by the has been breach of the provisions and of this act of the rules, it may be without prejudice of any criminal action that it may take against each center, lab, and clinic suspension registration of such period, and if it think fit of cancellation तो is बेसिकली registration. ये वाली बात है, बेसिकली इसमें ये वाली बात है कि भाई जिसका ये सस्पेंशन कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्यों ना आपको सस्पेंड किया जाए रजिस्ट्रेशन, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि भैया आपका मतलब उनको भी एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, बस यही वही बात बोल रहे हैं कि भैया एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको, बताओ क्यों क्यों ना किया जाए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, बस ये वाली बात है। Notwithstanding anything contained in above subsection, if AA is of the opinion that it is necessary for an expedited to not to do so public interest, it may be for the reason to record it in writing, suspended the registration of the Genetic Counseling Center, Genetic Clinic, Genetic Laboratory without issuing of any such show cause notice. देखो, चाहे ऊपर कुछ भी लिखा हो, अगर एडवाइजरी अथॉरिटी चाहती है कि इसका कैंसिल कर दिया जाए रजिस्ट्रेशन, तो वो कर सकती है, प्रोवाइडेड इट शुड बी डन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, चाहे वो उसको सुनने का मौका दे ना दे, लेकिन फिर भी उसको क्या है, वो कर सकती है। प्लीज रीड इट। Maintenance and preservation of record. Genetic counseling, genetic laboratory, genetic clinic or ultrasound clinic or imaging center will maintain a register showing in the serial order the name and address of the men and women given the generic counseling subjected to prenatal diagnostic procedure or test, the name of their father and the date of which they first reported of such counseling procedure procedure of test. ठीक है, मतलब ये रखना है इनको, रेगुलर रजिस्टर मेंटेन रखना है, और इसकी फोटो कॉपी जो है हर 3 से 6 महीने में जमा करनी होती है। ठीक है, The record to be maintained by the every genetic counseling center in the respect of which every woman counsel shall be found by Form D. The record to be maintained by every genetic laboratory in respect of each man and woman subjected to prenatal diagnostic technique test will मतलब be हर हर में हर जो भी पेशेंट आया है, उसका एक तो फॉर्म डी होना चाहिए और फॉर्म ई होना चाहिए। फॉर्म डी में क्या है,
उस पर्टिकुलर पेशेंट की सारी डिटेल्स। फॉर्म ई में क्या है, हर जो भी आया है उनकी सारी डिटेल्स। The record to be maintained with a genetic clinic and in respect of each every man and woman subject to prenatal diagnostic shall be specified for me. The age shall be maintained registered a permanent record of application grant renewal of certificate registration specific for each. ठीक है, इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। So before मतलब conducting a कोई भी pre पीएनडीटी का टेस्ट करने से पहले एक रिटन कंसेंट लेना चाहिए। वो फॉर्म जी दिया हुआ है, उसको उसको भरवाना पड़ता है। ठीक है, the person पढ़ो। conducting ultrasonography on a pregnant woman shall keep a complete record therefore the clinic in such manner that may be prescribed that in any deficiency in accuracy found there is a small amount to contravention of provision of section 5(6) unless the contrary is proved to a person conducting such ultrasonography. ठीक है, इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कुछ ऐसे बताने वाला नहीं है, मैं आपको बाकी कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, Intimation of changes in employed place or equipment. Genetic laboratory, genetic clinic, genetic counseling center shall initiate every charge of employee place, address, equipment installed with a period of 30 or such change. देखो एक हॉस्पिटल है, वहां पे अगर 4 अल्ट्रासाउंड मशीन है तो चार चार उसके वो रजिस्ट्रेशन अलग अलग होंगे। ठीक है, Hmm. 2 तरह की अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, एक मूवेबल होती है, एक इमूवेबल होती है, दोनों की अलग अलग चाहिए हमको। ठीक है, Hmm. प्लीज रीड इट। Public Information Rule 17. Prominently display of notice it is premises in English and other local languages of the information of the public to the effect that the disclosure of sex of fetus is prohibited under law. It is at least one copy of the act and the rule shall be available. The AA and the state government may publish periodically list of registered centers and findings and many other reports and information in the possession for the information of the public and for the use of experts in the field. ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड होता है लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि ये लॉ ने मना किया हुआ है। और अगर कोई हमसे आके ये बोलता है कि लॉ आप हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन कर दीजिए, तो हम पुलिस बुला सकते हैं और आपको अरेस्ट करवा सकते हैं। ऐसा एक डिस्प्ले वहां पे प्रोमिनेंट लोकेशन पे लगा होना चाहिए। इट इज अंडर द एक्ट। ठीक है, so that's for today we conclude here this session। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली शायद हम आपके, मुझे थोड़ा सा आइडिया दे देना कब से आपके एग्जाम्स, सो दैट आई कैन टेक अदर क्लासेस आल्सो अकॉर्डिंगली।